हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू फैंस ऑफ मैथ्स। दोस्तों, आज फैंस ऑफ मैथ्स में हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए सबसे पहले फार्मूला, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये फार्मूला आपने ड्राइव लेक्चर 1 में किया था। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेक्चर्स की सीरीज है। आज का लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले ये फार्मूला टू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस या टू फंक्शंस u एंड v। तो इसका फार्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। और एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, टू इंटीग्रेट x क्यूब इनटू e रेज़ टू 2x dx। ये हमारे पास फंक्शन आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ कौन सा फर्स्ट फंक्शन मींस u होगा एंड व्हिच वन द सेकंड फंक्शन जिसको हम v कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है और ये हमारे पास एक वर्ड है आइलेट, और ये वर्ड हमें फर्स्ट फंक्शन के बारे में बताएगा। यहाँ से हम फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे तो आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। L जो थर्ड लेटर जो A है, इट इज अलजेब्रिक फंक्शन। T for trigonometric function and E for exponential function। अब यहाँ देखते हैं, फर्स्ट है I means inverse trigonometric function या inverse trigonometric function नहीं है। तो आगे बढ़ो, सेकंड लेटर L for logarithmic function, there is not a logarithmic function। नेक्स्ट A for algebraic function। तो बच्चों, ये x क्यूब जो है ये algebraic function है। It means that x क्यूब ये फर्स्ट फंक्शन I mean u है। तो obviously e raised to 2x to be the second function, you consider second function। तो ये जो x क्यूब ये है u, तो v जो हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, so therefore I which is equal to, according to formula, first function u या u है x cube, तो first function remains same into second function की इंटीग्रेशन, यहाँ है e raised to 2x, इसकी इंटीग्रेशन e raised to 2x की, तो e पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन सेम ही है, बट यहाँ जो x का कोफिशिएंट 2 यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो इंटीग्रेशन में ये होगा डिवाइड। तो ये हो जाएगी e raised to 2x की इंटीग्रेशन and then negative sign integration derivative of first function x cube की derivative है 3x square into integration of second function e raised to 2x की same integration 1 over 2 e raised to 3x into dx। next step ये हो जाएगा x cube e raised to 2x over 2 negative sign, और here 3 over 2 remains same and integration of x square into e raised to 2x dx। once again ये जो x square ये u है and e raised to 2x ये second function v है, तो यहाँ से we use integration by parts formula। now next step, ये first function same रहेगा and integration of second function e raised to 2x, वही same integration 1 over 2 e raised to 2x, negative sign integration derivative of first function x square का derivative है 2x and integration of second function e raised to 2x की integration हो जाएगी 1 over 2 e raised to 2x and dx। now next step, now here ये multiple होगा positive negative negative 3 over 2 to the 4 x square e raised to 2x, negative negative positive, and here you can cancel 2, तो यही 3 over 2 remains same and integration of x into e raised to 2x dx। once again here we have u and v, first function second function, to be integrated by parts। तो ये यहाँ तक से first function same into integration of second function, ये हो जाएगी 1 over 2 e raised to 2x, negative sign integration derivative of first function x का derivative 1 into integration of second function, ये हो जाएगा 1 over 2 e raised to 2x into dx। ये यहाँ तक सेम लिखो। now positive here positive हो जाएगा positive 3x e raised to 2x over 2 to the 4
and positive, negative, negative, and 3 1 the 3 over 2 to the 4 and integration of e raised to 2x dx. अब इसकी इंटीग्रेशन चाहिए तो ये पूरा यहाँ तक सेम स्टेप रहेगी. Now negative 3 over 4 integration of e raised to 2x वही सेम 1 over 2 e raised to 2x plus c. अब ये हो गई इंटीग्रेशन. अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 3 over 4 to the 8 होगा तो मीन्स 1 over 8 हम कॉमन निकालते हैं as well as e raised to 2x कॉमन in every term. तो now अब 1 over 8 into e raised to 2x कॉमन. तो now यहाँ क्या मिलेगा हमें यहाँ 4 2 का टेबल 8 को 4 टाइम्स 4 1 का 4 and x क्यूब रहा नेगेटिव साइन. here 4 का टेबल 8 को 2 टाइम्स 2 3 का 6 x स्क्वायर positive 4 का टेबल 8 को 2 times 2 3 the 6x and e raised to 2x is also common. 4 to the 8 8 का टेबल 8 को 1 time 1 3 the 3 and break it over plus c. ये हो गया आंसर. इट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये क्वेश्चन इसका आंसर मिला. ये हो गई इंटीग्रेशन. Now friends, look at next question, part number 4, to integrate x sec inverse x dx. ये हमारे पास क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूले से. ये हमारे पास फार्मूला. तो वही बात, फर्स्ट फंक्शन u यहाँ कौन सा होगा एंड सेकंड फंक्शन v हमें चाहिए. यहाँ कौन सा सेकंड फंक्शन होगा. तो फर्स्ट फंक्शन के लिए हमारे पास ये सुपर डुपर ट्रिक हाईलाइट फर्स्ट फंक्शन I for इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक इनवर्स x है. तो इट मींस दैट सेक इनवर्स x ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन. I मीन u हो गया. तो सेकंड फंक्शन ऑब्वियसली x v जो है यहाँ x होगा. तो लेट्स सी. अब ये क्वेश्चन हम इसको इस तरह लिखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेक इनवर्स x इनटू सेकंड फंक्शन x इनटू dx. तो ये तो अब क्लियर बात हो गई फर्स्ट फंक्शन की एंड सेकंड फंक्शन v की. नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. नाउ वी यूज फार्मूला. सो देयरफॉर I which is equal to according to formula u या u फर्स्ट फंक्शन तो sec inverse x remains same into integration of second या x की इंटीग्रेशन है x square over 2 negative sign integration and derivative of first function 1 over x radical of x square minus 1 into integration of second function x की integration है x square over 2 with respect to x break it over and dx. Now next step, it remains same. नेगेटिव साइन नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 1 over 2 ये 2 यहाँ बाहर आएगा आउट ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन. यहाँ एक x आप देख सकते हैं यहाँ x कैंसिल हो गया एक x चला गया तो यहाँ न्यूमरेटर में x into dx तो ये हो जाएगा x dx ओवर रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. अब हमें जो ये सेकंड टर्म है इसके इंटीग्रेशन चाहिए. तो बहुत ही सिंपल, रेडिकल को आप इग्नोर करें. जो रेडिकल है इसका डेरिवेटिव निकालें 2x. यहाँ x dx है बट 2 नहीं है तो वी कैन मल्टीपल एंड डिवाइड 2 है. तो ये नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह हो जाएगी. नाउ यहाँ डिवाइड करो 2. ये 2 ऑलरेडी है एक 2 आ गया डिवाइड एंड इंटीग्रेशन है ये 2 मल्टीपल करो dx ओवर रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. अब आप देख सकते हैं यहाँ x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो dx के साथ है. अब ये ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी इस तरह. अब ये x स्क्वायर माइनस 1 एंड होल पावर नेगेटिव 1 over 2 into 2x dx. अब इसकी इंटीग्रेशन वी हैव टू एड 1 एंड डिवाइड दिस न्यू पावर तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन. नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल x स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव 1 over 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1 over 2 प्लस 1 प्लस c. अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप. पावर आप देख सकते हैं जो होल पावर x स्क्वायर माइनस 1 का पावर माइनस 1 over 2 प्लस 1 एलसीएम निकालो सॉल्व करो. इधर ये 1 जो होल है इसमें हाफ गया तो यहाँ हाफ पावर बचा. इट मींस x स्क्वायर माइनस 1 पे जो पावर होगा वो 1 over 2 तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी 1 over 2
तो ये 1/2 एंड हेयर 1/2 कैंसिल करो, तो हमारे पास यहाँ 1/2 बचेगा एंड यहाँ जो होल पावर 1/2 है ये रेडिकल में आएगा, तो ये x² - 1 प्लस c रहेगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये क्वेश्चन सिंपल हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। Now friends, next question, part number 6, to integrate 2x dx over cos square 2x। तो इसको हम कुछ इस तरह चेंज करेंगे, I which is equal to integration 2x into cos sec का रेसिप्रोकल है, तो sec square 2x into dx, ये हो गया इस फॉर्म में। Now अब हमारे पास ये ट्रिक काम आएगी, I made word है इसमें फर्स्ट फंक्शन I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये A जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये 2 को अगर ये बाहर निकालो एंड इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर 2x dx। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो ये जो u है, u हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा एंड v ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द आइलेट। Now next step, integrating by parts, 2 remains same and in bracket first function u same, ये first function same, integration of second function की integration, तो sec square 2x dx, negative integration, derivative of first function x की derivative 1 है and integration of second function, ये integration of second function भी हो गया। Okay, now next step, 2 remains same and x integration of sec square 2x, sec square की integration है 10 2x and यहाँ जो 2 मल्टीपल x से हो रहा है इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा, नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन ऑफ sec square 2x, इसकी इंटीग्रेशन है 10 2x over 2 into dx and ये बेस भी होगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीपल होगा, तो ये 2 यहाँ कैंसिल, ये हो गया x इंटू 10 2x नेगेटिव, और ये 2 यहाँ मल्टीपल होगा तो ये भी कैंसिल 2 हो जाएगा, तो सिंपली वी हैव 10 2x dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x, x 10 2x negative, integration of 10 2x is natural log of sec 2x and now 2 जो डिवाइड होगा प्लस c, तो फाइनली वी हैव टू रीअरेंज और यही होगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ sec 2x प्लस c, ये हो गई इंटीग्रेशन। Now friends, next part number 7, to integrate 9x tan square 3x dx। फंक्शन हमारे सामने है, इसलिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द आइलेट जो a जो है यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन, तो x जो होगा वो अलजेब्रिक फंक्शन मींस फर्स्ट फंक्शन u होगा, ऑब्वियसली tan स्क्वायर 3x ये सेकंड फंक्शन v होगा, तो यहाँ सेकंड फंक्शन की हमें चाहिए इंटीग्रेशन, तो tan स्क्वायर 3x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो लेट्स सी, सबसे पहले ये क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाएगा, 9 रिमेन्स सेम इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर का फार्मूला है sec स्क्वायर, या 3x है तो 3x और -1 dx, ये हो गया फार्मूला tan स्क्वायर 3x का। अब ये x मल्टीपल होगा यहाँ, तो 9 रिमेन्स सेम एंड इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर 3x dx, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये 9 आप यहाँ बाहर लिखें एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये हो गया u एंड sec स्क्वायर 3x सेकंड फंक्शन v। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला, 9 रिमेन सेम, फर्स्ट फंक्शन u सेम x सेम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है 10 3x ओवर 3 नेगेटिव साइन 9, अब इंटीग्रेशन सॉरी सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 10 3x over 3, now negative 9 into integration of x with respect to x, तो x की इंटीग्रेशन है x स्क्वायर ओवर 2। now next step, ये 9 इस टर्म से मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स x 10 3x over 3, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 9 1 9 over 3
ये कैंसिल हो जाएगा, यू कैन राइट 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 10 3x इंटू डी एक्स, यहाँ डी एक्स लिखो इंटू डी एक्स एंड नेगेटिव साइन ये होगा 9/2 एक्स स्क्वायर। अब 10 3x की इंटीग्रेशन ये टेबुलर गया तो ये हो जाएगा 3x 10 3x नेगेटिव 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 10 3x नेचुरल लॉग ऑफ sec 3x ओवर ये 3 डिवाइड होगा -9/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ 3 3 कैंसिल तो फाइनली जो आंसर आएगा वो होगा 3x 10 3x नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ sec 3x -9/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। बच्चों ये हो गई इंटीग्रेशन, हमारे पास जो फंक्शन था उसकी सिंपल। नाउ पार्ट नंबर 10 टू इंटीग्रेट x पावर m नेचुरल लॉग ऑफ x dx। तो इस फंक्शन को हम नेचुरल लॉग जो फर्स्ट फंक्शन है पहले लिखो x पावर m जो सेकंड फंक्शन इनटू dx। तो फ्रेंड्स ये हो गया नेचुरल लॉग फर्स्ट फंक्शन x पावर m जो सेकंड फंक्शन भी है। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स I which is equal to first function u first function natural log of x same into integration of second function x power m with respect to x, its integration is x power m plus 1 over m plus 1 negative sign integration डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेटिव है 1 over x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x पावर m की इंटीग्रेशन है x पावर m plus 1 over m plus 1 into dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये सेम रहेगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन चाहिए हमें 1 over m plus 1 ये कांस्टेंट है, यू कैन टेक आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन होगी x पावर m plus 1 over x dx। नाउ इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। अब ये जो पावर है बेस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो आप डायरेक्ट इसको x पावर m लिख दें सिंपल। ये फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम ही रहेगा, नेगेटिव साइन 1 over m plus 1 into इंटीग्रेशन ऑफ x पावर m dx, ये हो जाएगा x पावर m plus 1 over m plus 1 plus c। अब आप देख सकते हैं यहाँ x पावर m plus 1 over m plus 1 ये कॉमन, तो ये कॉमन निकालें, बहुत ही सिंपल हो गया। तो ब्रैकेट में अब क्या रहा, यहाँ रहा नेचुरल लॉग ऑफ x नेगेटिव एंड हियर इन सेकंड टर्म 1 over m plus 1 plus c। ये हो गया फाइनल आंसर, इट इज इंटीग्रेशन। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 टू इंटीग्रेट 2x cube e raised to x square dx। ये हमारे पास फंक्शन, तो लेट मी चेक व्हिच विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड व्हिच विल बी द सेकंड फंक्शन। तो यहाँ बहुत क्लियर लगा पड़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो लास्ट में है, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू बी द सेकंड फंक्शन, तो ये होगा सेकंड फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भाई याद रखना, एनपी क्वेश्चन है। तो e पावर x स्क्वायर ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो फार्मूले के मुताबिक जो सेकंड फंक्शन है उसकी हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो e रेज़ टू x स्क्वायर की इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले x स्क्वायर, e पे जो पावर है x स्क्वायर, पावर का डेरिवेटिव, e के पावर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x dx। यहाँ 2x dx dx के साथ 2x नहीं है, 2 तो है मगर dx के साथ x नहीं है, तो x क्यूब तो हमारे पास है, x क्यूब का हम x एक x निकालेंगे, यहाँ dx को देंगे, तो ये हो जाएगा 2x dx। बहुत ही सिंपल हो गया। तो आइए दोस्तों अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, बहुत ही इजी होगा। तो इस क्वेश्चन को हम अगर इस तरह करें, I which is equal to integration of x square and e raised to x square, and यहाँ जो एक x क्यूब का जो हमने निकाला था वो 2x को दे तो dx के साथ आ जाएगा 2x जो x स्क्वायर का डेरिवेटिव। सिंपल हो गया। नाउ x स्क्वायर को फर्स्ट पुटिंग करते हैं, x स्क्वायर which is equal to y differentiating with respect to x 2x dx which is equal to dy। अब तो हो गया बहुत सिंपल, ब्रेड एंड बटर। तो ये i जो हमारा न्यू फंक्शन है, तो ये हो जाएगा i which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर मींस इसकी वैल्यू है y into e raised to x square, again e raised to y and
2x dx किसकी वैल्यू हो गई, 2x dx हो गई वैल्यू y dy की। तो यहाँ 2x dx की जगह हम लिखेंगे dy। अब तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये हमारा u एंड e रेज़ टू y, ये है हमारा v सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट फंक्शन ये y रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन या e रेज़ टू y की इंटीग्रेशन e रेज़ टू y ही है, नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और e रेज़ टू x का y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y e रेज़ टू y है एंड dy। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा y e रेज़ टू y नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू y dy। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल, y e रेज़ टू y and integration of e raised to y with respect to y is e raised to y and plus c. Now in last step, in place of y, अब y की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू है we resubstitute here, तो हो जाएगा हमारा आंसर in place of y its value is x square e raised to x square negative sign e raised to x square plus c. If you want to take e raised to x square common तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये हो गया आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट नंबर 12, टू इंटीग्रेट e raised to 3x sin 2x dx। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है और एमसीक्यू भी आता है। इसकी एमसीक्यू हम सुपर ट्रिक से करेंगे, उसकी वीडियो अलग बनाएंगे हम, मगर आज हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है। तो आइए दोस्तों, यहाँ हमारे पास फार्मूला तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आ रहा है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट है, तो ये हो जाएगा v सेकंड फंक्शन, बट sin 2x ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन होगा। तो लेट्स सी, अब इसको कुछ अरेंजमेंट में ये इस तरह हो जाएगा sin 2x into e raised to 3x dx। दोस्तों ये है u फर्स्ट फंक्शन एंड e raised to e पावर 3x ये है सेकंड फंक्शन, आई मीन v है। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स I which is equal to first function u same, तो sin 2x हो गया सेम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e raised to 3x, इंटीग्रेशन है e raised to 3x और ये 3 जो यहाँ x के साथ मल्टीपल हो रहा है इंटीग्रेशन में होगा डिवाइड, सिंपल। नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव है cos 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2, ये 2 आगे आ गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e raised to 3x, इसकी इंटीग्रेशन हो गई e raised to 3x over 3 into dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा e raised to 3x over 3 sin 2x नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा 2 over 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x e raised to 3x dx। once again u and v। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगी कुछ इस तरह e raised to 3x over 3 sin 2x नेगेटिव साइन 2 over 3 फर्स्ट फंक्शन सेम cos 2x, ये cos 2x सेम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e raised to 3x, इसकी इंटीग्रेशन है e raised to 3x over 3 देन नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos 2x का डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव 2 sin 2x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e raised to 3x की इंटीग्रेशन हो गई e raised to 3x over 3 and dx। अब नेक्स्ट स्टेप now negative positive negative 2 1 the 2 over 3 3 the 9 e raised to 3x into cos 2x। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव एंड 2 2 का 4 ओवर 3 3 का 9 एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x e raised to 3x dx। नाउ हमें इस पार्ट की इंटीग्रेशन चाहिए, बट अगर हम थोड़ा देखें तो ये तो वही सेम पार्ट जो हमारा क्वेश्चन था वही वापस आ गया। तो अगेन यहाँ से यही सेम प्रोसीजर हम रिपीट नहीं करेंगे,
तो फिर क्या करेंगे, तो इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x e raised to 3x dx हम रखेंगे इसकी वैल्यू जो I है। तो इन प्लेस ऑफ दिस पार्ट हम रखेंगे I। तो ये हमारा जो फंक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये यहाँ तक से एंड ये हो गया I के बराबर। अब ये -4/9 टाइम्स I ये शिफ्ट हो जाएगा इस I के साथ, इट मीन्स लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा 4 जो पॉजिटिव हो जाएगा 4I/9 और ये सेम रहेगा एंड प्लस C। अब यहाँ लो एलसीएम 9I प्लस 4I हो जाएगा 13I/9। हमें चाहिए सिर्फ I, तो ये 13/9 जो होगा वो शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी 9/13 हो जाएगी। और यहाँ अगर हम e⁻3x कॉमन निकालें तो e⁻3x भी कॉमन भी निकल रहा है, तो बाकी क्या मिला हमें, यहाँ मिलेगा 1/3 sin 2x एंड नेगेटिव साइन, यहाँ मिलेगा cos 2x ब्रैकेट ओवर प्लस c। तो दोस्तों ये 9 या टेबल लग रहा है तो सिर्फ जस्ट यू मल्टीप्लाई 9 विद ब्रैकेट, तो जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा ये मिलेगा e रेज़ टू 3x/13। 9 यार इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के टर्म से, फर्स्ट टर्म से, तो ये 9 3 से मल्टीप्लाई टेबल लगेगा, तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स sin 2x नेगेटिव और 9 यहाँ मल्टीपल होगा तो पूरे का पूरा 9 कैंसिल और 2 cos 2x मिला प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये इंटीग्रेशन हमारे पास इस फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका होमवर्क है। आई होप यू विल डू अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर इट एंड लाइक इट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, click the I button as you get new and latest videos. Till then, bye bye.